ओके, वॉइस क्लियर है ना? हाँ सर। Okay, so today we are going to discuss about the EBS, Elastic Block Storage. Okay, so in the EC2 side, we have different options to store your data. Okay, so the first and the most important is EBS. Okay, EBS is what? Whenever you are going to launch any kind of the EC2, so always you will get a one EBS, the by default EBS in your EC2. ठीक है ना? जब भी लॉन्च करते हो तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या एक मिलता ही मिलता है ईबीएस। और द साइज ऑफ दिस वन इज 30, मैक्सिमम 30 GB, right? This is only for the 30 GB, and this is your primary storage. This one is your for your primary storage. In this one you can store your operating system। ठीक है, ये जो होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस वन इज ऑल्सो नोन एज बूट बूट वन और रूट वन, boot or root, right? Because it's contained only for your operating system, right? So you are not able to store any kind of the data in this part, in this storage one. If you want to store the data, then you need to add a secondary storage one. Okay, then you need to use another hard disk or the another storage. But in your free tier account, you are eligible to use only the 30 GB. If you notice, whenever you are going to launch your Linux operating system, so it will automatically take the 8 GB of storage, right? और जब विंडोज पे जाते हैं तब ये कितना ले लेता, ऑटोमेटिक इट विल टेक द फुल 30 GB। ये मैंने बोला था, राइट? याद है ये कि जब भी लॉन्च करते हो लिनक्स का तो वहाँ पे क्या दिखाता है, बाय डिफॉल्ट आपका 8 GB ले लेता राइट, है, और जब विंडोज पे जाते हो 30 GB ले 30 लेता है। जी बी। हाँ। But in this case you are not able to, you don't have any kind of the space to store your data. Like suppose you have any kind of the file and you want to store that kind of the file in your server, so you don't have any kind of the separate space. Okay, so if you want to store any kind of data in your servers, so we need to add this EBS, Elastic Block Storage. Okay. Now see what is the EBS volume. So an EBS is Elastic Block Store Volume, is a network drive you can attach to your instance while they running. Okay. So in the running condition, you are able to add this EBS to your EC2, and then after you are able to use it. Okay, remember this one, EBS is what? Is a volume, is a network drive. Okay, and you can attach to your instance while they run, and it allows your instance to process the data even after their termination. Okay, so your data is also present after the termination for the some time period. If you want to retrieve, so you can retrieve, otherwise the data is going to lost. And then they can only be mounted to one instance at a time, राइट? अब ऐसा नहीं कर सकते कि लाइक अगर मेरे पास एक ये सर्वर है एंड आई हैव दिस EBS, okay, I have this EBS and I have one more server is there, this is my server, this is my server. So at that time you are able to mount your EBS only one server. Okay, it is not possible to mount it on the multiple one. Okay, so remember this one, so they can only be mounted to one instance at a time, and they are bound to specify the availability zone. Okay, so whenever you are going to add a EBS, so remember the availability zone must be same. Okay, it means the server and the EBS both are present in the same availability zone. So on that case, you are able to replicate or you are able to attach the EBS with your EC2। ठीक है ना? अवेलेबिलिटी जोन चेक कर लेना, अगर अवेलेबिलिटी जोन सेम नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिक रेप्लिकेट नहीं होगा और अटैच भी नहीं करने देगा। इसलिए द अवेलेबिलिटी जोन मस्ट बी सेम वेन एवर यू आर गोइंग टू एड अ EBS in your EC2, right? And in your free tier account, it is a 30 GB for EBS storage type general purpose SSD for the magnetic per month। ठीक है,
सो बाय डिफॉल्ट जो फ्री में मिलता है वो क्या है, 30 GB EBS स्टोरेज है, और जो कैसा होता है, SSD होता है। SSD मतलब इट इज अ डायरेक्ट अटैच with your system. It is a directly attached with your system, and this one is a network drive. This one is a network drive. So this is a difference. So that's why this one is known as a root one and the boot one. Okay, and this one is for your storing your data. So ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, जब कॉन्फ़िगर करोगे ना तो यही सबसे ज़्यादा काम आएगा। अवेलेबिलिटी जोन पहले देखना होगा आपको। यू नीड टू चेक योर अवेलेबिलिटी जोन फॉर योर EC2, and then after you need to launch your EBS. Otherwise, suppose this one is present on the US East 1, and if you are going to deploy this one in the US uh, East 2 or 3, so on that case it will not replicate. So the availability zone must be same. ठीक है ना। EBS वॉल्यूम इज व्हाट, इट इज अ नेटवर्क ड्राइव। ठीक है, ये फिजिकल ड्राइव नहीं है जो फिजिकल ड्राइव कनेक्ट करते हैं। ये कैसा है, नेटवर्क ड्राइव है। नेटवर्क ड्राइव कैसे होता है, जैसे सपोज मान लो ये मेरा सर्वर हो गया। ठीक है, दीज आर द माई सर्वर्स, और यहाँ पे कोई मैंने स्टोरेज सेंटर बना रखा है। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डेटा सेंटर। सो हियर आई हैव अ रैक, इन द रैक आई हैव अ मल्टीपल हार्ड डिस्क। ठीक है, दीज आर द हार्ड डिस्क, or you can say it is a kind of a SAN, storage area network. Okay, तो यहाँ पे क्या है, सारी की सारी पूरी रैक्स लगी हुई हैं, और इन द रैक आई हैव अ मल्टीपल हार्ड डिस्क टू स्टोर द डेटा, एंड विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क वायर और द नेटवर्क कनेक्टिविटी आई एम एबल टू कनेक्ट विथ माई सर्वर। ठीक है, तो जो भी डेटा है ना वो किसके थ्रू जाएगा, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ NAS। NAS मीन्स व्हाट, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। ठीक है ना, तो ये जो है ना सिनेरियो, जैसे रैक है, रैक में हार्ड डिस्क हैं, और विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क यू आर एबल टू कनेक्ट विद द स्टोरेज, सो दैट काइंड ऑफ द नेटवर्क इज नोन एज अ नेटवर्क अटैच स्टोरेज। ओके, it uses to network to communicate the instance, which means there might be a bit of latency. Obvious, अगर नेटवर्क पे काम करोगे तो लेटेंसी थोड़ा सा होगा ही होगा। ठीक है ना, सिग्नल कहीं ना कहीं ड्रॉप होने के चांसेस हैं। सो इट विल बी अ लिटिल बिट स्लो एज कंपेयर टू द डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। It can be detached from an EC2 instance and attached to another one quickly. Okay, suppose you are connected with this one, and the same time you want to detach from this one and attach with this one. Okay, so it will take hardly 1 to 2 seconds, and then after you are able to switch from one EC2 to another EC2, right? And it's a log to an availability zone. An EBS volume in US East 1 are connect to be attached to US East cannot see, वो अभी मैंने एग्जांपल दिया था, कैन नॉट बी अटैच टू US East 1B। तो 1A पे अगर सर्वर है तो 1A पे ही EBS होना चाहिए, तभी कनेक्ट करेगा, अदरवाइज कनेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो याद रखना 1A है तो 1B पे नहीं जाएगा। एंड टू मूव अ वॉल्यूम अक्रॉस योर फर्स्ट नीड इज टू स्नैपशॉट। अब अगर ये सीन करना है, जैसे सपोज मान लेते हैं कोई एक सिनेरियो आ गया जहाँ पर मेरा एक सर्वर है, वो कहाँ पर था, US ईस्ट 1A पे था। ठीक है, अब मुझसे बोला गया कि ये जो डेटा है, इस डेटा को तुमको क्या करना है, यहाँ पे जो EBS तुम यूज़ कर रहे हो ना, इसको तुमको यहाँ से माइग्रेट करना है, और कहाँ लेके जाना है, लेके जाना है US ईस्ट 1B पर लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे भी जा सकते हैं, या फिर सपोज मैं कह दूं कि तुमको कहाँ लेके जाना है, तुमको एशिया में लेके जाना है। एशिया में जो मुंबई रीजन है ना, वहाँ लेके जाना है। तो देखो क्या हुआ, अवेलेबिलिटी जोन, यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन अलग हो रहा था, और यहाँ पे क्या हुआ, रीजन भी अलग हो गया। तो उस केस में क्या करना होगा, यू नीड टू क्रिएट अ स्नैपशॉट फर्स्ट, एंड देन आफ्टर यू कैन ट्रांसफर योर डेटा फ्रॉम वन अवेलेबिलिटी जोन टू अनदर अवेलेबिलिटी जोन, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। Okay. So with the help of snapshot feature, you are able to transfer your data from one availability zone to another availability zone. Clear? What is a snapshot? It is a kind of a backup, or you can say this one is a very strong feature is provided by the EBS. Right? So snapshot is what? It is a kind of a replica of your data. So for the, if
if you have a snapshot, or maybe your hard disk is corrupted, and maybe your server is crashed, so don't worry about your data, because you have a snapshot. So with the help of a snapshot, you are able to retrieve your data. Okay. And remember, suppose this is my hard disk size is 30 GB, and I'm going to create a snapshot for this hard disk. So did you know what will be the size of the snapshot file? ये 30 GB का पार्टीशन है जिसपे डेटा रखा हुआ है, मैं इसका स्नैपशॉट बनाने जा रहा हूँ, तो कितना साइज का जी बनेगा? यहाँ पे कुछ कुछ तो डेटा है, ठीक है, लेकिन पूरा साइज कितना है? 30 GB का है। अगर मैं स्नैपशॉट बनाऊंगा तो कितने का बनेगा? सेम साइज, सेम बनेगा, इट विल बी सेम, इट विल बी 30 GB। ओके, सो रिमेंबर दिस वन। Okay. जब भी आप स्नैपशॉट बनाओगे, सो स्नैपशॉट विल बी द सेम साइज। ओके, सो दिस वन इज क्लियर। और अगर हम स्नैपशॉट देते हैं सर प्रैक्टिस करने का टाइम में, तो फिर उसको भी डिलीट करना रहेगा, राइट? हाँ, ऑब्वियसली डिलीट करना ही है, उसको रखने से कोई फायदा तो है नहीं। जब मेरा सर्वर ही नहीं रहेगा, सर्वर टर्मिनेट कर देंगे तो क्या ही मतलब, हम्म। ठीक है। अब अभी ये तो बता रहा कि कैसे करना है, ठीक है। ये देखो जो मैंने बोला ना कि कैन कॉपी स्नैपशॉट अक्रॉस द एजी एंड द रीजन, तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट ओनली। एंड द व्हाट इज अ स्नैपशॉट? इट इज यूज फॉर द मेक अ बैकअप ऑफ योर ईबीएस वॉल्यूम एट अ पॉइंट इन टाइम, ठीक है। एंड इन दिस वन नॉट नेसेसरी टू डी अटैच वॉल्यूम टू डू द स्नैपशॉट, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन रिकमेंड करता है कि हाँ डी अटैच कर लो फिर बनाओगे तो ज़्यादा बेटर बनेगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं, कभी भी बना सकते हो। आप क्या करते हैं, चलो अब इसको करके देखते हैं। ओके, लाइक हाउ यू विल अटैच दिस वन। So first, going to launch a EC2, and once the EC2 is launched, and after that I'm going to add a one more storage with the server. So click on the launch instance, and type server. So I want to use Amazon Linux, and then keep here. So right now I need to create, and then now see, यहाँ पे देख लो बाय डिफॉल्ट कितना है 8 GB है, और लिमिट कितना है 30 GB का, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे ना, सी दिस वन इज द रूट वॉल्यूम, और ये कैसा होता है? रिमेंबर, नॉट इनक्रिप्टेड। सो ऑलवेज रिमेंबर योर रूट वॉल्यूम इज अ नॉट इनक्रिप्टेड वन। ओके, एंड इफ यू क्लिक ऑन दिस वन, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द storage: GP3, GP2, IO1, IO2, and the some are non-highlighted. See, cold HDD and throughput optimize is not highlighted. Why? Okay, I will explain this one. And then the magnetic standard is there. So अभी इतना समझ लो, ये दोनों क्यों हाईलाइट नहीं है? बिकॉज दीज टू आर नॉट यूज फॉर द रूट वॉल्यूम, ठीक है ना। ये HDD है, देखो क्या लिखा हुआ है, कोल्ड HDD, और ये इसमें क्या लिखा, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज HDD। तो इन दोनों का यूज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए नहीं करते हैं, इसलिए ये अभी यहाँ पे हाईलाइट नहीं है। और क्यों नहीं करते वो भी मैं बाद में ग्राफ बताऊंगा पूरा, तो उसमें दिखाऊंगा, ठीक है। अभी इतना समझ लो कि हम ये दो नहीं करते, बाकी सबका यूज हम कर सकते हैं। सो दिस वन इज द ओल्डेस्ट वन, मैग्नेटिक स्टैंडर्ड, ठीक है, और द लो कॉस्ट हार्ड डिस्क, right? And this one is the new one, GP3. It is a much higher speed as compared to the others storage, ठीक है। So GP2 भी है, IO1 भी है, IO2 भी है, तो डिपेंड ऑन यू, लाइक
which one you want to use on your EC2 side. So by default you are eligible to use the GP3, but if you want to change for the GP2 or the I1, so you can. ओके, तो अभी हम क्या GP3 पे रखेंगे और आगे and now I'm going to launch instance one. See, I have an option to add this one, add a new volume with the help of this button, but I will add but after the launching one. On the running condition I am trying to add a EBS. Okay, so launch instance, क्योंकि उस टाइम पे क्या ना हमें सारी चीज़ें कमांड लाइन से करनी होंगी, तो that one will be गुड। तो अभी हमने लॉन्च कर दिया, लॉन्च करने के बाद में हम इस पे गए और यहाँ पे देखो जाके हमारा एक EC2 रेडी हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। और इन स्लाइसिंग पे है, सो यू टू क्लिक ऑन दिस करेंट बटन, कॉपी ओपन उठा लो बिकॉज यू नीड टू राइट डाउन सम कमांड्स। ओके, अभी हम क्या करेंगे, लिनक्स का है ना, तो लिनक्स पे हमको पार्टीशन ऐड करेंगे, फिर हमें पार्टीशन बनाना पड़ेगा, पार्टीशन फॉर्मेट करना पड़ेगा और उसको माउंट कराना पड़ेगा। सो फॉर ऑल दीज थिंग्स आई एम गोइंग टू यूज अ कमांड्स। अभी ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो sudo su करते हैं और रूट पर आ जाते हैं, ओके, एंड क्लियर दिस वन। So now what I want to check how many hard disks present in my system. अभी मुझे क्या देखना है, कितनी हार्ड डिस्क हैं और उनका साइज क्या है। So the command is fdisk space -l. With the help of this command, you will get the idea how many hard disks you have and the space. Enter. Now see. So right now I have one hard disk with the name of /dev/xvda and the size is 8 GB. Okay, and these are the this one is the hard disk only. Okay, and in this hard disk I have three partition with the name of /dev xvda1 /dev xvda127 /dev xvda128, and the size is what, 8 GB, 1 MB or 10 MB, and the type is what, Linux file system, BIOS one or EFI system. Clear? So remember, with the help of this command, you will get the entire detail of your hard disk. ठीक है ना। अभी देखो सब कुछ पूरा बता दिया। अभी ये क्या है, ये सिर्फ हार्ड डिस्क है। जैसे विंडोज में क्या होता है, विंडोज में मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, सी दिस वन, डिस्क mg empty.msc एंड ओहो MSC बोला था बाबू। अरे वो GMR लिखा हुआ MTC, गुस्सा हो जाता है विंडोज, कहता है लिनक्स यूज करते हो तुम, ज़्यादा नहीं आएंगे। अभी देखो ये क्या है, ये डिस्क है, ठीक है। दिस वन इज अ डिस्क जीरो, डिस्क जीरो है, ठीक है। कितना साइज इसका, 476.92 GB। अब इसमें मैंने क्या कर रखा है, 1 2 और 3, दीज आर द 3 पार्टीशन प्रेजेंट ऑन माई हार्ड डिस्क। तो सेम यहाँ पे भी, यहाँ देखो क्या XVDA है, ये क्या होगी मेरी हार्ड डिस्क हुई, और इस हार्ड डिस्क में मेरे पास 3 पार्टीशन, लाइक द C पार्टीशन, C ड्राइव, D ड्राइव और E ड्राइव। क्लियर, C D और E, this one is clear. And now, so another part is what, I want to add one more storage in my server, and then I want to store some kind of the data in that storage. तो अभी क्या करें, अभी तो है ही नहीं मेरे पास, हार्ड डिस्क तो एक ही है, उसमें भी क्या 8 GB है। अब ये कह रहा है 8 GB मेरे पास है, मैं तुमको क्या दूँ, अपने पास क्या रखूँ, डेटा रखना है तो दूसरी हार्ड डिस्क लेके आओ जाके मार्केट से। मैंने कहा ओके, चलो मार्केट चलते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, गो टू द डैशबोर्ड, और यहाँ देखो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है ना, यहाँ पे देखो क्या वॉल्यूम आ रहा है, स्नैपशॉट आ रहा है, लाइफ साइकिल मैनेजर आ रहा है। सो क्लिक ऑन द वॉल्यूम्स, सबसे पहले हमें वॉल्यूम पे जाना पड़ेगा, क्लिक ऑन द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम पे जाने से पहले एक चीज़ देख लेना, ये कहाँ पर है, देखो कौन सा रीजन है, US ईस्ट 1 है, ठीक है, रीजन देख लेना। अब ये देखो, ये तो बाय डिफॉल्ट है, तो इसको ऐसा करते थे ना, एक नाम दे देते थे, कोई भी नाम दे देते थे, जैसे कि ओल्ड 1, तो हमको याद रहेगा कि हाँ ये तो बाय डिफॉल्ट आया था, GP3 है, 8 GB का है, ठीक है ना। तो ये है, मैंने इसको नाम दे दिया ओल्ड 1, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो अभी एक नया हार्ड डिस्क जब हम ऐड करेंगे। क्लिक ऑन द क्रिएट अ वॉल्यूम,
कौन सा चाहिए, GP3 ये GP, अब यहाँ देखो सारे आ गए, देख रहे हो, ये दोनों वहाँ हाईलाइट नहीं थे, यहाँ हाईलाइट हो गए, क्योंकि इनका यूज तुम डेटा स्टोर करने के लिए कर सकते हो, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट नहीं करते, सो दे आर नॉट अ गुड फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम, बट इफ यू वांट टू स्टोर द डेटा सो यू कैन यूज दिस वन। ओके, अगर कम कॉस्ट में काम करना है तो इनका यूज कर सकते हो। So I also go with the GP3. And now, what will be the size? See, this is your limit. 1 GB to maximum 16384 GB. Okay, this is your limit. So अभी कितना चाहिए? I want only 10 GB. ठीक है ना? बहुत ज़्यादा डेटा नहीं, सिर्फ 10 GB चाहिए. So IUPS is this one. IUPS is what? Input output per second. So with the help of IUPS, you are able to define the speed of your read and write method. Throughput, it is 128 MB, 125 MB per second. And now see, this is the region. तो वहाँ पे रीजन क्या था, यूएस ईस्ट 1 है ना, यहाँ पे देखो एक बार फिर से चेक करो, यूएस ईस्ट 1 है, और ये कहाँ ले जा रहा है मुझे, यूएस ईस्ट 1 ए पर। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 1 बी कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, तो मुझे कहाँ जाना है, 1 ए पे जाना है। सो आई गो विद दिस वन। अभी ये पूछ रहा है यू वांट टू क्रिएट अ स्नैपशॉट, ठीक है। तो मैंने बोला नो, आई डोंट वांट टू क्रिएट अ स्नैपशॉट, आई विल क्रिएट बट द लेटर ऑन। And now here you have option, if you have any kind of the sensitive data or the important data, so you need to enable this encryption। ठीक है, अगर चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, यू हैव दिस ऑप्शन। So right now I don't have any kind of the sensitive data, so I'm not going to enable this one, but it's up to you whenever you are in the company side, so you need to enable this volume, okay, and then create। अभी ये क्रिएट हो जाएगा, देखो सी क्रिएट वॉल्यूम हो गया। ओके, चेक करते हैं। देखो आगे इसको एक नाम दे देते हैं पहले, न्यू 1 एंड सेव। अभी देखो JB GP3 ये 8 GB है, ये 10 GB है, IUPS सेम है, थ्रूपुट सेम है, स्नैपशॉट मैंने नहीं बनाया तो यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पर आ गया, क्रिएटेड ऑन दिस वन। ठीक है, रीजन क्या है, बोथ आर द सेम, वेरी गुड। यहाँ कुछ चेंजमेंट हुआ, देखो यहाँ बाकी तो सब सेम है, यहाँ चेंजमेंट हुआ, क्या दे रहा है, दिस वन इज फॉर द इन यूज, वॉल्यूम स्टेटस इज व्हाट, इन यूज, एंड दिस वन इज व्हाट, ओनली अवेलेबल। It is only available but not in use. So what I need to do, I need to change the status from available to in use। ठीक है ना, क्या करेंगे, change the status from available to in use। So for this thing you need to select your new hard disk, go to the action one and click on the attach volume। Okay, click on the attach volume, go to the actions and click on the attach volume। So with the help of this one, you are going to attach this 10 GB storage with your EC2। Clear? So I'm going to click. It is going to attach with my EC2। So here it is asking the device name. So this is my server name। ठीक है ना, if you have a multiple server, so you will get the list of the server here, but right now I have only one server, so I'm going to select this one and then give the device name। So what will be the device name, I recommend for this one, hdb/dev/hdb। Okay, and click on the attach volume, it is going to attach with your server। And now here you can see the status is changed from available to in use, it means it is successfully attached with my server। Okay, now go to the server side and run the same command fdisk-l and check how many hard disks you have। See, this time I have one more hard disk /dev xvdb, and the size is what, 10 GB, and this one is my primary hard disk xvda, and the size is what, 8 GB। अभी क्लियर है ना, 8 GB भी आ गया, 10 GB भी आ गया। अब अभी बताओ, क्या मैं इस 10 GB पे डेटा रख सकता हूँ, डेटा रख माउंट पाऊंगा? माउंट करेंगे शायद तब होगा, राइट? हार्ड डिस्क कभी भी माउंट नहीं होती है, ओके। माउंट हमेशा पार्टीशन होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू क्रिएट अ पार्टीशन लाइक दिस वे। ओके,
I need to create a partition, and then after I need to format a partition. After that, you are able to use the partition for the data. ठीक है, तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी मेरे पास एक हार्ड डिस्क आ गई है /dev xvdb। अब हम इस पे क्या करेंगे, हम इस पर पार्टीशन बनाएंगे। ठीक है, पार्टीशन बनाने के लिए आप क्या करोगे, यू नीड टू रन अ कमांड fdisk। ठीक है ना, fdisk, और हार्ड डिस्क का नाम क्या है मेरा, /dev/ क्या नाम है बोलो, XVDB। xvdb। DB। ठीक है, गलती से भी ये मत लिख देना xvd है, नहीं तो समझ लेना ऑपरेटिंग सिस्टम चला जाएगा। जिस पे पार्टीशन बनाना है उसी का नाम लिखना, xvdb पे बनाना है, तो जस्ट मेक श्योर द नेम विल बी सेम। अगर यहाँ पे ए कर दिया तो इसका मतलब है तुम इस पे चले गए। ठीक है, तो fdisk/dev क्या लिखेंगे, fdisk स्पेस /dev/xvdb, एंटर। ठीक है ना, वंस यू प्रेस एंटर देन यू कैन सी इट इज अ काइंड ऑफ अ यूटिलिटी, और यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोग्राम। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम you are able to create a partition on your Linux environment। ठीक है, अब अभी क्या कह रहा है, कमांड M for the help। So here you need to type a command if you don't know like what is the command to create a partition, so just press M for the help। तो अभी मुझे भी नहीं पता क्या होगा, तो मैं भी चलो M प्रेस कर देता हूँ for the help, M and enter, and now see I got the menu। Okay, A for this one, B for this one, C for this one, D for this one, F for this one। So what I want to add a new partition। So for adding a new partition you need to press N। ठीक है ना, क्या प्रेस करना है, I need to press N for a new partition। Okay, चलो दे देते हैं, N दिया, enter। After this it will ask you the which type of the partition you want to create, primary one or the extended one। Remember, if you have any kind of the hard disk and you are go with the primary partition, so you are able to create only the 4 partition। Okay, you are able to create a 4 partition, and more than 4 in the primary it will not allow you। प्राइमरी की ये मैक्सिमम लिमिट है, आपको 4 GB तक सपोर्ट करेगा, 4 GB सॉरी 4 पार्टीशन तक सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक 100 GB की हार्ड डिस्क है और मैंने 10 GB के 4 पार्टीशन बना दिए, वो भी कौन से, प्राइमरी, तो बाकी का जो 60 GB है ना, वो पूरा का पूरा बेकार चला जाएगा। ठीक है, आप फिर उसके बाद कोई भी पार्टीशन नहीं बना पाओगे। इसलिए हम अपने हार्ड डिस्क में क्या करते हैं, सिर्फ 1 या 2 प्राइमरी पार्टीशन बनाते हैं, और उसके बाद हम क्या बनाते हैं, एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाते हैं। ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्राइमरी के लिए चला जाता हूँ, आई गो विद द प्राइमरी। सो टाइप P फॉर द प्राइमरी, मुझे प्राइमरी बनाना, तो मैंने P प्रेस किया और एंटर कर दिया। ठीक, पूछ रहा है पार्टीशन नंबर, सो 1 से 4 की लिमिट है। ठीक है, तो कोई भी नंबर दे सकते हो, तो मैंने दे दिया 1 दे दो। ठीक है, गो विद द 1, एंटर। अभी पूछा सेक्टर का साइज बताओ। देखो अब सेक्टर और ट्रैक, हार्ड डिस्क जो होती है ना, हार्ड डिस्क इस पर डिवाइड होती है ट्रैक और सेक्टर पे। अब अगर आपको ट्रैक और सेक्टर नहीं पता है तो आप क्या करो, यू जस्ट प्रेस एंटर। सो बाय डिफॉल्ट ये कहाँ से स्टार्ट करता है, 2048 से करता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई 2048 से कर ले, क्योंकि मुझे ट्रैक और सेक्टर की कैलकुलेशन नहीं आती। हम लोग जब भी पार्टीशन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू द साइज। मैंने बोला भाई 5 GB का पार्टीशन बना दो या 10 GB का पार्टीशन बना दो, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि मुझे इतने ट्रैक और इतने सेक्टर चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कैलकुलेशन के लिए। तो अभी मुझे नहीं आती, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दे रहा है ना डिफॉल्ट दे रहा है, देखो डिफॉल्ट पे क्या कह रहा है, इट विल स्टार्ट बाय डिफॉल्ट फ्रॉम दिस नंबर। तो मैंने कहा ओके स्टार्ट हो जाता हूँ, एंटर किया। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन इट विल आस्क यू द साइज। ठीक है, सो व्हाट आई वांट टू क्रिएट अ प्लस ओके, यू नीड टू ऐड अ प्लस और द माइनस सिंबल फर्स्ट, +5G। what is the mean of this one, I want to create a 5 GB partition। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे K लिख दूंगा, K का क्या मतलब हुआ, KB, M का मतलब MB, MB। G GB, T टेराबाइट, P पेटाबाइट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया +5G दिया।
ठीक है ना। प्लस जरूर देना। प्लस क्यों दोगे, प्लस माइनस क्यों देते हैं कि इन केस अगर कोई भी ट्रैक और सेक्टर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है ना तो वो एडजस्ट कर लेता है उसको अपने आप, इसलिए हम देते हैं प्लस 5G, फिक्स नहीं देते। अगर 5G दोगे तो इट मीन्स फिक्स हो गया, तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। सो दैट्स व्हाई आई एम गो विद द प्लस और माइनस 5G, प्लस 5G एंड एंटर। बन गया। The partition is successfully created, and now before exit from this tool I want to check the partition is created or not. So what I need to do, press C, press P for print the partition table। ठीक है ना, अभी P प्रेस करेंगे और चेक करेंगे पार्टीशन बना या नहीं बना। Press P and enter, and now see I have one partition, okay, slash dev xdb1, and what is the hard disk name, xvdb. In the xvdb I have one partition xvdb1 and the size is what, 5 GB. Okay, so each and everything is good. So what I want to exit from this tool। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रेस करना होगा, यू नीड टू प्रेस W। W मीन्स वॉट, टू सेव द सेटिंग्स। W प्रेस करके एंटर कर दो, बाहर आ गए। Right now again I'm going to clear my terminal and then run the command fdisk space -l and check I have one new partition। है ना, पार्टीशन। देखो लास्ट वाली लाइन पढ़ो, है ना कि नहीं है, बन गया ना पार्टीशन। अरे बोलो भाई। I'm not able to see the DB1. अरे DB1 नहीं दिख रहा, ये है देखो। ना, बन गया। Okay. अरे चाय कॉफी कुछ लिया कि नहीं लिया अभी ये? लिया था sir. What is that सबसे लास्ट। mount that you and Gaurav are telling? What is that? wait, coming Okay. on the mountain point। Okay. So right now only the partition is created, okay। तो अभी क्या करना है, अगर यहाँ देखो तो यहाँ पर देखो फाइल सिस्टम दिखा रहा है ना, विंडोज में देखो क्या दिखा रहा है, NTFS दिखा रहा है, राइट। NTFS व्हाट इज दिस NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। So it means if you are going to use any kind of the partition, so you need to assign the file system first। ठीक है ना, अभी फाइल सिस्टम मतलब ऐसे समझो जैसे तुम्हारा घर है, तुमने एक नया घर बनवाया, ठीक है ना। अब उस घर में कैसे डिफाइन करोगे कि ये बेडरूम है, ये किचन है, ये ड्राइंग रूम है, ये गेस्ट रूम है, कैसे डिफाइन करोगे? कैसे डिफाइन होता है, करेंगे नहीं, कैसे डिफाइन होता है कि ये बेडरूम है, कैसे देख के पहचान जाते हो कि ये बेडरूम है, ये किचन है, कैसे देखते हो, कैसे पहचानते हो, बताओ। हॉल में रखने की चीजें अलग है, किचन में रखने की चीजें, तो उसके हिसाब से। हाँ, तो इट मीन आर्किटेक्चर ना, हाँ, आर्किटेक्चर। अगर बर्तन कहीं पे रखे हुए हैं, गैस कहीं रखी हुई, तो इट मीन्स इट इज अ किचन। वहां किचन। जाके तो लेट नहीं जाओगे, ठीक है ना। बेडरूम में जाओगे, देखो वहाँ बेड वेड पड़ा हो, तो इट मीन्स इट्स बेडरूम, ठीक है। हॉल में, ड्राइंग रूम में है, वहाँ पे सोफा पड़ा हुआ है, सेंटर टेबल लगी हुई है, तो वो क्या हो गया, मेरा हॉल हो गया, ड्राइंग रूम हो गया। तो इसमें जो भी चीज़ें उसमें रखी हुई ना, उनको देख के हम आइडेंटिफाई करते हैं। सो दिस पर्टिकुलर रूम इज फॉर दिस पर्पस, है ना, ऐसे करते हैं ना। तो सेम चीज, सेम थिंग यू नीड टू अप्लाई इन दिस पार्टीशन साइड। यू नीड टू असाइन अ फाइल सिस्टम, ताकि इसको भी पता चल जाए कि इसको भाई डेटा कैसे रखना है। तो फॉर असाइनिंग द फाइल सिस्टम यू नीड टू फॉर्मेट द पार्टीशन। अभी आपने क्या किया, अभी आपने हार्ड डिस्क में से एक छोटा सा पीस, एक छोटा सा स्पेस कट किया है, यानी कि 10 GB का हार्ड डिस्क था, तो उसमें से 5 GB का पार्टीशन आपने कट किया है, राइट। लेकिन आपने कोई भी फाइल सिस्टम असाइन नहीं किया है। तो फाइल सिस्टम असाइन करने के लिए हमें क्या करना होता है, आई नीड टू फॉर्मेट द पार्टीशन। कैसे, MKFS स्टैंड फॉर द मेक फाइल सिस्टम। क्या लिखोगे, MKFS का फुल फॉर्म क्या है, मेक फाइल सिस्टम। डॉट लगाने के बाद ना टैब दबा देना, टैब की। अब अभी देखो यहाँ पे क्या है, दीज आर द फाइल सिस्टम यस। जो हम लोग लिनक्स में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे वहां पे NTFS है ना, वैसे यहाँ पे क्या है, AXT2 है, AXT3 है और AXT4, ठीक है। एक्सटेंडेड 2
एक्सटेंडेड 3 और द एक्सटेंडेड 4। ये 2 जो है ना, ये बहुत ही पहले जो RHL 4 है, 5 है, 6 है, वहाँ पे यूज होता था। 3 इज अ मिड वन, मिड रेंज वन। और अभी जितने भी लेटेस्ट है ना, सबसे ज़्यादा जो सिक्योर है, जो अभी नया लॉन्च किया गया, डेट इज EXT 4। तो इसमें से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे सपोज मैंने क्या लिया, मैंने मिड रेंज ले ली, मैंने लिया EXT 3। मैंने क्या ले लिया, EXT 3 ले लिया। तो मैं अपना जो पार्टीशन है ना, उसमें मैं एक फाइल सिस्टम असाइन कर रहा हूँ, कौन सा, EXT 3। तो मैंने EXT 3 दे दिया, ओके। EXT 3 हो गया। अब किसको, स्लैश देव, पार्टीशन का नाम क्या है, पार्टीशन का नाम क्या है विजय? दीदी XVDB1. XVDB1। मुझे क्या करना है, मुझे पार्टीशन फॉर्मेट करना है, हार्ड डिस्क फॉर्मेट नहीं करनी है, मुझे पार्टीशन फॉर्मेट करना है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड आई एम गोइंग टू फॉर्मेट माय पार्टीशन एंड एंटर। देन अब अभी क्या हुआ, पार्टीशन फॉर्मेट हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया, रेडी है। अब मुझे इसको यूज करना है, लेकिन यूज करने के लिए देखो यहाँ पे कमांड चलाते हैं df-h। अब अगर यहाँ पे गौर करूँ तो देखो क्या दिखा रहा है, XVDA है, XVDA 128 है, लेकिन मेरा पार्टीशन कहाँ है यार, मेरा पार्टीशन नहीं दिख रहा है। XVDB1 कहाँ चला गया, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये जो पार्टीशन है ना कहीं माउंट है, देखो माउंटेड ऑन, यहाँ 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 यहाँ, और मेरा तो है ही नहीं, मैंने उसको कहीं माउंट किया ही नहीं, मैंने उसे कहीं माउंट किया ही नहीं। मैंने माउंट किया। और लिनक्स में क्या होता है कि अगर आप कोई भी स्टोरेज बाहर से अटैच करते हो, लाइक पेन ड्राइव हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, या ये EBS हो गया, तो इसको आपको कहीं ना कहीं माउंट करना पड़ेगा। यू नीड टू माउंट फर्स्ट एंड देन आफ्टर यू आर एबल टू यूज। सो व्हाट इज द कमांड टू माउंट अ पार्टीशन? माउंट, किसको माउंट करना है MNT विजय, किसको माउंट करना है? पता नहीं सर, समझ में नहीं विजय, आया अभी माउंट। अभी जो पार्टीशन बनाया वो कौन सा था? व्हाट इज द पार्टीशन नेम? XVDB1. XVDB1। तो मुझे माउंट भी उसी को ही करना होगा, क्योंकि उस पर मुझे डेटा रखना है ना, हाँ हाँ, ठीक है। राइट। तो माउंट स्लैश किसको, देव, देव मतलब क्या हुआ, डिवाइस, डिवाइस की सारी इंफॉर्मेशन इसी के अंदर आती है, इसलिए हम इसको देव बोलते हैं, देव स्लैश किसको, XVDB1। माउंट करना है, किसको माउंट करना है और कहाँ माउंट करना है, ओके। सो इन द माउंट कमांड यू नीड टू डिफाइन पार्टीशन नेम एंड द माउंटिंग पॉइंट, ठीक है। माउंट किसको करना है और कहाँ करना है। तो किसको करना है वो तो तुमने लिख दिया, देव स्लैश XVDB1 को करना है, और कहाँ करना है, तो आई वांट टू माउंट दिस वन इन स्लैश MNT। ये पहले से एक डायरेक्टरी होती है, मैंने उसका नाम दे दिया स्लैश MNT। इन द प्लेस ऑफ स्लैश MNT इफ यू वांट टू यूज योर नेम, सो यस यू कैन, you need to create your directory first, and then in the place of slash mnt you can define your directory name, so the partition will going to mount on your directory, ठीक है ना। तो स्लैश mnt था, एंटर कर दिया, डन। अब अगर मैं फिर से लास्ट वाला कमांड चलाता हूँ, df-h फिर से अगर चलाता हूँ, तो नाउ सी इन द लास्ट लाइन व्हाट हैपन। अभी मेरा पार्टीशन आ गया, आ गया, यस से यस और नो। यस। अब what I want to add some files, I want to add some data in this new hard disk। तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, CD स्लैश MNT के अंदर जाना पड़ेगा ना। MNT के अंदर चले जाते हैं, आ गए MNT में। अब यहाँ पर रह के अगर मैं कोई भी फाइल, कोई भी डेटा या कोई भी डायरेक्टरी बनाऊंगा, तो वो सब कुछ कहाँ जाके स्टोर होगा, वो सब कुछ कहाँ जाके स्टोर होगा, DB DB1. नहीं तो होगा ना, क्योंकि ये देखो MNT दिखा रहा है ना, MNT में क्या है, XVDB है। अब Right. MNT में आप कुछ भी रखोगे तो कहाँ जाएगा, XVDB में चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, Yes. ठीक है। तो अब मैं यहाँ बनाता हूँ MKDIR
1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 और कुछ फाइल बना देता हूँ, टच स्पेस QWERTYLS, देखो डायरेक्टरीज एंड सम फाइल्स इज प्रेजेंट इन दिस वन। ठीक है, राइट। इतना समझ में आया। अब अगर मान लो कोई मेरी ये XVDB को निकाल के भाग जाए तो ये मेरा डेटा भी चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? यस। निकाल निकाल दें, निकाल दें, मान लेते, चलो दिखाता हूँ, निकाल देता हूँ पहले। यू माउंट मैंने लिखा, यू माउंट, इसको कर दूँ /MNT। ठीक है, अब अगर मैं LS या चलो फिर से मैं जाता हूँ CD MNT LS, अभी मेरा डेटा कहाँ गया? मेरा डेटा कहाँ गया? पहले मैंने LS किया था ना, जो डेटा था, अभी LS कर रहा हूँ तो देखो क्या कह रहा है, ब्लैंक है, ये तो है ही नहीं कुछ। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने माउंट जो था उसे क्या कर दिया, यू माउंट कर दिया। ठीक है, फिर से बाहर आता हूँ, अब फिर से मैं लिखता हूँ माउंट कर दो भाई, किसको माउंट करो, माउंट /dev /XVDB1 /MNT, है ना। अब अगर LS/MNT करोगे तो देखो डेटा आ गया, पहले नहीं आया था, अभी आ गया, क्योंकि अब क्या माउंट हो चुका है। इतना समझ में आया? हाँ यस सर। विजय ये कुछ है नहीं, पेन ड्राइव वाला ये एग्जांपल याद करके समझने की कोशिश करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कमांड चलाने हैं फॉर दी पार्टी। क्या क्वेश्चन? बाउंस हो रहा है क्या? ये तो मैंने लिनक्स में भी पढ़ाया था, थर्ड डे, अगर याद होगा। हाँ ये पार्टीशन आपने बताया। ये बताया था मैंने उसमें भी। विजय क्या हो गया, ज्यादा हो रहा है क्या? रुक गए? मुझे वो कमेंट सब देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कमांड दे के कंफ्यूज हो जाता है, तो उसका रीज़न यही है कि लिनक्स की प्रैक्टिस नहीं करी होगी। जो स्टार्टिंग मैंने 3 डेज लिनक्स पढ़ाया था वो नहीं देखा ना, अगर वो नहीं देखा होगा, उसकी प्रैक्टिस नहीं करी है तो प्रॉब्लम आएगी। पूजा, एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, sir. 2025 येणार आहे 8-15 दिवस. पक्का ना, क्लियर है ना? आगे का कवर करूं, अभी स्नैपशॉट भी बाकी है। या कैमरा ऑन करो, देखें सबके सब जग रहे सो रहे हो। हालत अच्छी नहीं है सर, फिर भी ऑन कर लेते हैं। हेलो, हेलो सर। हेलो हेलो, हमें विस्मय वीडियो विजिबल हाँ कैमरा वर्किंग? बस बस विजय, मैं दिख रहा हूँ। यस यस। कैसा है टॉमी? मस्त। इतनी ठंड पड़ गई। हाँ
सर का नेटवर्क गया शायद। No, sir is in mute. Am I visible, Vijay? हाँ, Yes, यस, yes. यू आर विजिबल। अभी विजिबल है। पूजा, पूजा सो रही है। है ना पूजा? चलो ठीक है, आगे स्टार्ट करें, स्नैपशॉट वाला भी बना दें, नहीं तो फिर मुझे ठीक है इतना सर। फिर से करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे रुकूंगा ना तो फिर से मुझे पूरा प्रोसेस समझाना पड़ेगा। नहीं, ठीक है। तो स्नैपशॉट पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन ऑल्सो टर्न ऑफ योर कैमरा एंड नाउ सी ऑन द स्क्रीन। हाय हाय। ओके, नाउ इट इज विजुअल। दिख रहे हैं सर। Yes. हाँ, अभी देखो, कहाँ गया? ओके, नाउ सी, सो ये आ गया वापस से, ठीक है। sudo su हाइफन, सो यहाँ पे फिर से देखो, df-h करते हैं तो यहाँ पे मेरा पार्टीशन ऑलरेडी माउंट है, कहाँ पर? /mnt पे, ठीक है ना, एक्सक्यूट में। अब मुझे क्या करना है, सपोज आई वांट टू क्रिएट अ स्नैपशॉट, क्योंकि मुझे लग रहा है किसी भी टाइम हो सकता है ये हार्ड डिस्क खराब ना हो जाए, तो इसमें कुछ सेंसिटिव डेटा है, तो मैं इसका बैकअप बनाना चाहता हूँ। तो बैकअप बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे गया और यहाँ पर स्नैपशॉट्स में गया, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, ओके, कुछ नहीं है, ब्लैंक है। वापस से मैं वॉल्यूम पे गया और वॉल्यूम पे मेरे पास दो हार्ड डिस्क हैं, ओल्ड और न्यू। तो मुझे कौन सा चाहिए? न्यू वाला चाहिए। न्यू को सिलेक्ट किया, एक्सेस पे गया और यहाँ पर देखो आ रहा है ऑप्शन, क्या? क्रिएट अ स्नैपशॉट। एक्सेस पे जाओगे और किस पे क्लिक करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट योर हार्ड डिस्क, देन गो टू द एक्शन एंड क्लिक ऑन द क्रिएट अ स्नैपशॉट, and after this click, and here you need to give the any kind of the description, like what is the purpose to create this snapshot. So for backup, okay, give the any name which you want to assign and then create, ठीक है, सिंपल। सो द प्रोसेस इज गोइंग टू स्टार्ट। अभी देखना है प्रोसेस स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। सो टू द, कहाँ है स्नैपशॉट सेक्शन, यहाँ पे जाओ, ये देखो बन रहा है, कंप्लीट बन भी गया। देखो कितनी जल्दी बन गया, कोई डेटा तो था नहीं मेरा इसलिए जल्दी बन गया, अगर कोई डेटा होता है तो टाइम लगता है। अच्छा, ये भी देखो कैसा है, नॉन इंटरप्टेड आया, क्योंकि मेरा हार्ड डिस्क कैसा था, नॉन इंटरप्टेड था, तो ये भी नॉन इंटरप्टेड आया और साइज देखो सेम टू सेम आया 10 GB, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मेरा डेटा है ना, उसको मैं पहले यहाँ से करता हूँ यू माउंट कर दो /mnt को,
वो यू माउंट टी में से अरे यार इधर वाला टी ऊपर चला गया। अच्छा, इधर वाला टी उधर भाग गया। अभी अगर चेक करोगे ls/mnt करूँगा मैं तो कोई भी डेटा नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है। इसका मतलब ये यूमाउंट सक्सेसफुली हो गया। अब क्या हुआ, विजय ने क्या कहा कि अब मैं समझ में मुझे आ नहीं रहा, तो ये हार्ड डिस्क लेके भाग जाते हैं, ना हार्ड डिस्क रहेगी और ना सीखना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, सीधे हार्ड डिस्क पे टिक किया, हार्ड डिस्क को निकाल के भाग जा रहा है और डी अटैच कर दिया डी अटैच। अभी तो डी अटैच हुआ है ना, डी अटैच से क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ स्टेटस चेंज होगा, इन यूज से अवेलेबल हुआ, लेकिन हार्ड डिस्क अभी भी है। तो विजय को अभी भी लग रहा है यार अभी भी दिख रही है, तो इसका मतलब है पढ़ना पड़ेगा, इसको पूरे गैप पढ़ूंगा। फिर से टेक किया, ले जा रहे इसको हम अपने, डिलीट, पूछा कंफर्म डिलीट, हमने कहा हाँ पूरा कंफर्म, नहीं पढ़ना हमको, डिलीट, चली गई हार्ड डिस्क गई, डेटा भी गया, चला गया। अब इस केस में क्या करेंगे, सपोज मेरी हार्ड डिस्क अगर फॉल्टी निकल जाती है या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है डेटा में, तो मेरे पास स्नैपशॉट है, मैं कहाँ जाऊँगा, स्नैपशॉट सेक्शन में जाऊँगा। यहाँ पर ये बैकअप पड़ा हुआ, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ओके, गो टू द स्नैपशॉट, सिलेक्ट योर स्नैपशॉट नेम और द बैकअप नेम, गो टू द एक्शंस। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इससे क्या करना है, यू वांट टू क्रिएट अ वॉल्यूम, यू वांट टू क्रिएट अ इमेज और यू वांट टू कॉपी अ स्नैपशॉट। ठीक है, कॉपी स्नैपशॉट करोगे तो क्या करेगा, इस एलोबेटिक जोन से दूसरा एलोबेटिक जोन या इस रीजन से दूसरा एलोबेटिक जोन पे लेके जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे क्या करना है, आई वांट टू क्रिएट अ वॉल्यूम फॉर दिस स्नैपशॉट। मैंने इस पर क्लिक किया, देखो यहाँ पे देखो वो सारी चीज़ें अपने आप फिल होके आ गई जो मैंने दी थी। 10 GB साइज दिया था, यहाँ पे भी देखो 10 GB आ गया। पहले कितना था, 100 GB था, लेकिन इस बार कितना आया, बाय डिफॉल्ट 10 GB फिल होके आया। और अवेलेबिलिटी जोन भी देख लो, सेम टू सेम आया। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो एक बार देख लेना सेम है या नहीं है, मेरे में तो सेम आ गया। ठीक है, वेरी गुड। तो सब कुछ देखो वैसे का वैसे ही आया ना। अब हम इसको क्रिएट कर देते हैं, ये क्रिएट हो गया। वॉल्यूम पे जाके देखो, वहाँ पे एक वॉल्यूम आ गया होगा, ये देखो आ गया। और ये कैसा है, अवेलेबल है इन यूज में। तो इसको क्या करना होगा, क्लिक और फिर से एक्शंस, और क्या करोगे, अटैच, है ना, जैसे पहले किया था वैसे ही अटैच। किससे करना है अटैच, आई वांट टू अटैच विद दिस सर्वर, क्या नाम होगा, ये होगा अटैच, डन। अभी ये अटैच हो गया। यहाँ पे देखो चेक द स्टेटस इन यूज, ओके वेरी गुड। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे कमांड चलाते हैं fdisk space -l, and now you can see I have one hard disk with a one partition also। अभी देखो पार्टीशन बनाया नहीं, बनाया आया पार्टीशन ना, यहाँ पर पार्टीशन कैसा है, बनाया हुआ आया, पहले से ही बना हुआ था, वेरी गुड। तो अब सिर्फ मेरे लिए एक ही काम बचा, आई नीड टू माउंट दिस वन। तो रन द कमांड माउंट /dev/xvdp1/mnt, एंटर, माउंट भी हो गया। अब अगर ls/mnt करोगे तो तुमने कुछ डेटा बनाया था ना उसके अंदर, राइट याद है, राइट फोल्डर देखो सब आ गया। So with the help of snapshot, you are able to retrieve your data, you are able to restore your data. Okay? इतना समझ में आ गया? यस And now again after this, you mount the partition. फिर से you mount कर देते हैं। अब सब कुछ काम कर लिया, मेरा काम खत्म, मेरी लैब कंप्लीट हो गई। I want to delete my resources, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैं यहाँ गया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक्शंस पे गया, क्लिक ऑन दी डी अटैच। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डी अटैच एंड देन डिलीट इट, डी अटैच एंड अभी आए नहीं, डिलीट, टाइप डिलीट, क्लिक डिलीट, हो गया। देन गो टू द स्नैपशॉट सेक्शन। अभी ये है सिलेक्ट एक्शंस
कॉपी स्नैपशॉट पे देख लो, कॉपी स्नैपशॉट। अब यहाँ देखो क्या दे रहा है, यहाँ से रीजन बता सकते हो, कौन सा प्रोबेबिलिटी जोन पे लेके जाना है वो भी बता सकते हो, ठीक है, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करना है कर सकते हो, ठीक है। अगर चाहो किसी दूसरे अकाउंट से करना तो वो भी करा सकते हो। अगर मान लो मेरे पास कोई स्नैपशॉट है और मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ तो वो भी पॉसिबल है, वो भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम उसको कॉपी भी कर सकते हो, एक रीजन से दूसरे रीजन पे चली जाएगी, ठीक है, एक रीजन से दूसरे रीजन पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो अभी हमें कॉपी नहीं करनी है, हमें क्या करना है, डिलीट करना है। क्लिक हियर एंड देन डिलीट स्नैपशॉट, टाइप हियर delete, delete, done, ये भी डिलीट हो गया। नाउ द फाइनल वन, गो टू द इंस्टेंस एंड डिलीट योर सर्वर। क्लिक ऑन दी, क्या करना है, इंस्टेंस स्टेट एंड terminate. So now this is your EBS lab is completed. Okay, so on what is your task, you need to perform the same by your side, and once you done successfully, after that perform the EBS with your Windows environment, ठीक है ना। अभी मैंने कैसे बताया, लिनक्स पे बताया, आप लिनक्स पे भी करोगे और फिर सेम प्रोसेस आप किसके लिए यूज करोगे, विंडोज के लिए। विंडोज सर्वर पे भी तो पार्टीशन बनाना पड़ेगा ना, तो वो आपको करके देखना है। ओके, if the EBS is clear, there is some important points are pending, so I will cover it later. Okay, there is some theory like how many types of the EBS we have, what is the purpose, what is the speed of that one. So I will cover it. Okay, step on the next class. But today the practical part is done. So I hope it is clear to everyone, and you need to perform this one by your side. Okay.